Now we are going to have a compelling good, yeah. session of the conclave, which will be very interactive session. Bharat, the suffocation of democracy in India. Truth versus hype. Dr. Satya Brahma, Editor-in-Chief, Network 7 Media Group, in conversation with Mr. Mayank Gandhi, social activist. Mr. Mayank Gandhi has been doing so many good work for the people in the rural areas. He has been empowering them. I have been to his events. They're like full, house full. And it's always an honor to see this discussion happening here. It will be fierce and entertaining. Sit. So, ladies and gentlemen, this is going to be one of the most volatile discussion, which I'm going to ask tough question to Mayank. For those of you who do not know Mayank, let me tell you that Mayank Gandhi was the face of India against corruption in 2011. He worked closely with social activist Anna Hazare. He was the national executive member of Arvind Kejriwal's first term. He contested elections from Mumbai. He became an active member of Aam Aadmi Party, went to Delhi, stayed with Arvind Kejriwal's house, very close to Arvind Kejriwal that time, and campaigned for him. Later on, he was kicked out by Arvind Kejriwal. He was shown his door that there is no place for Mayank Gandhi-like person who is having honesty and integrity with them. Now, Mayank is transferring the villages in Marathwada to a great extent. But the topic of discussion is about, many people ask me, in fact, one of the person didn't want to come to the program because I'm discussing about the suffocation of Indian democracy. Or to say in one word, bye-bye democracy, welcome dictatorship. So Mayank, my first question is that, is Prime Minister Narendra Modi is a dictator? That is what people in... Let's just first do a fact check. I was not kicked out by Kejriwal, I resigned from the party. Let's go with it. और मैं हिंदी में बोलूंगा, मुझे आप बोलिए हिंदी में, मैं भी बात करूंगा। सुबह से ये लग रहा है कि मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, सारा अंग्रेजी में हो रहा है। नहीं, आप हिंदी में ही बोलूंगा। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी का तानाशाही है अभी। ये कैसे आप बात करते हो तानाशाही? हमारे यहाँ एक कोर्ट है, अगर वो किसको जेल में डालता है तो कोर्ट भी बेल दे सकता है। वो जो भी ईडी कर रहा है, एंड ईडी हैज ओवर 90% कन्विक्शन रेट, तो ईडी जो कर रहा है, अगर किसने करप्शन किया है तो अगर उसको पकड़ा जा रहा है, बट व्हाई देयर इज अ 5 page इलेक्शन इन महाराष्ट्र डजंट हैव एनी क्रिमिनल दिस थिंग, इलेक्शन कमीशन इज बॉट ओवर एक्चुअली। तो उससे नहीं, ये सब आपके एलिगेशंस है। नो इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। व्हाई 5 फेज इलेक्शन होना यानी करप्शन होना, ये एक कंस्ट्रक्ट आपने बनाया है। मुझे तो सुनाई नहीं दी है कि 5 फेज हुआ तो ये डिक्टेटर हो गया, 3 फेज हुआ तो डेमोक्रेटिक। दिस इज टू शो नरेंद्र मोदी always 24/7 on the television screen because he can move from one state to another state. That is why it was a meticulous planning with a secret deal with the election commissioner. May I remind you that the former the election commissioner had to resign. Yes. Why did he resign? Why did he resign? वो इंटरनल कुछ होगा, मुझे There is no internal. I am not propagating नरेंद्र मोदी और बीजेपी, बट मैं भी कुछ समझता हूँ ना, मेरा भी एक एनालिसिस है ना। आपका जो एलिगेशंस है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, उससे मैं नहीं अग्री करता हूँ कि हर चीज नरेंद्र मोदी के वो अपोज करना। कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी को अपोज करते करेगा, कहीं आप देश को तो अपोज नहीं कर रहे हो। एंड आई एम नॉट इक्वेटिंग नरेंद्र मोदी विद इंडिया, लेकिन आपके मन में बस नरेंद्र मोदी को गाली दो तो ये आपको, देखिए ना, आप डिक्टेटर बोलते हो, आप बताओ डिक्टेटर क्या है? जिसने इमरजेंसी लगाया, जिसने हजारों कार्यकर्ता को जेल में डाला, जिसने स्टेट के बाद स्टेट डिक्टेटर। अरे वो कहां, इंदिरा गांधी है? यहाँ पे आपका कौन सा डिक्टेटर है? यू हैव अ थ्राइविंग ऑपोजिशन। It is another issue that the opposition leader is a little there is no opposition है, तो वो क्या कर सकते हैं?
उनको मीडिया में अलाउ नहीं है बात करने के नरेंद्र लिए। मोदी का काम थोड़ी है ऑपोजिशन को स्ट्रेंथ करना। He calls media houses, tells them if Rahul Gandhi comes and gives interview, I will close down your television. I will not give sponsorship. ये आपकी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। राहुल गांधी सब जगह मीटिंग्स कर रहा है, सब टीवी के ऊपर आ रहा है। नहीं आ रहे हो। अरे कैसे आप बोलते हो? मैं तो रोज टीवी देखता हूँ, रोज राहुल गांधी को देखता हूँ और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी का पिक्चर आता है वहां पे। अरे यार मुझे अभी मैंने सब टीवी चैनल बंद कर दिया, राहुल गांधी को देखता हूँ तो इतना एंटरटेनमेंट होता है कि मुझे वो सोप ओपेराज और वो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको चीज कमिंग ऑन टेलीविजन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी जी बोलिए ना। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, हाँ। ओके, आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस का वहां पे नंबर था। फिर क्या हुआ? जस्ट लिसन, हाँ आई विल टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट लेटर ऑन। हाँ In that meeting, there was Kiran Kher, the member of parliament, also was present. They know they were winning. In front of camera in broad daylight, it was stamped, and they made BJP person as the mayor. Why did they do it? अरे वो गलत हुआ ना। Was it done with the instance of the Prime Minister Modi and Amit Shah? प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलेगा कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन में इस तरह करो, ऐसा नहीं। कोर्ट वो है। गलत था ना वो? बिल्कुल गलत था। गलत गलत होता है, राइट राइट होता उसको है। किसने ठीक किया? कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। कोर्ट ने किया ना। तो आई एम जस्ट सेइंग ये कोर्ट सिस्टम पूरी है ना इंडिया में यार। कोर्ट सिस्टम में राहुल गांधी when he only make an inflammatory speech at Karnataka in session court, he was actually declared, he was defeated in let all the courts declared. When it came to the apex court, Supreme Court, and I must thank the present Chief Justice of India, who is doing a very good job. Justice Chandrachud is doing a very good job. If you not able to the Supreme Court, तो पूरा उनका काम तला खलास। तो अभी बोलोगे नरेंद्र मोदी ने जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आने दिया। नहीं बोल रहा हूँ, ये दैट आई एम नॉट टेलिंग यू। नहीं, ये भी बोल सकते हो ना। I जब know. कॉन्स्पिरेसी थियरी करना है और सारी गलती नरेंद्र मोदी के पैर पे रखना है तो ये भी रखिए कि एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट आया तो उसमें नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा नहीं हुआ। लेकिन वो जब गलत होगा तो वो सब नरेंद्र मोदी के कारण होगा। मेरे को ये वन साइडेड नैरेटिव नहीं जमता है। Why did Prime Minister tell in an election rally, Ajit Pawar 70,000 irrigation crore scam is a big enough in Maharashtra? वो जब आगे अगर बीजेपी में आने के बाद पूरा केसेस सब बंद हो गया। सेम गोज टू प्रफुल्ल पटेल, सेम गोज टू हिमंत बिश्व शर्मा, सेम गोज टू शिवसेना पीपुल, दोज हु जॉइंड। ये सच बोल रहा हूं ना मैं? एकदम सच बोल रहे हैं। आप बोलिए उसके बारे में। नरे अजीत पवार का केस कौन निकाला? मैं आपको बताता हूँ, मैंने किया है। अजीत पवार का 70,000 का केस पूरा, मैं उसका फर्स्ट पेटिशनर हूँ और उसके सारे पेपर। कौन से साल में? 2012 या 13 में। राइट, हाँ। तो ये पूरा केस जो है मैंने किया है। आज कोर्ट में जो केस चल रहा है ना उसके अगेंस्ट 70,000 करोड़ का, उसका फर्स्ट पेटिशनर मैं हूँ। नहीं, वो डस्टबिन में चला गया, केस नहीं है। एक मिनट सुनो ना पूरा। जर्नलिस्ट होते हैं तो उसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो ये I will not listen anything which is not true. पर मैं भी बोल नहीं रहा हूँ ना ट्रू। मैं बोलूंगा तो आप एक्सेप्ट कीजिए ना या काउंटर कीजिए। ठीक है। तो जब भी अजीत पवार यहाँ पे आया तो उसके कुछ केसेस वापस ले लिए, बरोबर है? तो सामने वाले ने कोर्ट में वापस गए हैं, तो दैट केस इज गोइंग ऑन। नरेंद्र मोदी के अंदर कोई पावर नहीं है कि कोई केस वापस ले। वो जुडिशियल सिस्टम उसको ले सकती है या उसको माफ कर सकती है या उसको पनिश कर सकती है। इसमें एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटर का कोई रोल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, फॉर बीजेपी टू टेक ऑल दीज टेंटेड पीपल इन देयर पार्टी, आई डू नॉट अप्रूव। लेकिन ये आज का गेम ही ना पावर पॉलिटिक्स हो गया है, स्पेशली महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स हो गया है। कोई मॉरल नहीं बचे, कोई एथिक्स नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। आई एम गिविंग यू फूड फॉर द फॉडर। आपको मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे को ऐसे सवाल दिखा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी डेड है। तो गलत हो रहा है देश में, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन अच्छा इज फार आउटस्ट्रिपिंग द गलत। सो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इज डूइंग गुड फॉर द नेशन? Ajit Pawar is an honest person. Ajit Pawar didn't do any wrongdoing. Hemant Biswa Sarma didn't do any wrongdoing. People, those who are in the opposition, didn't do anything. And BJP people are clean. You talk about Vyapam scheme from Shivraj Singh Chauhan. You talk about Hemant Biswa Sarma who has come to power in Assam. You talk about those people who are charged with tainted cases. You talk about Brij Bhushan Singh, accused of molestation in Olympic models. Why they didn't take any action? वापस मैं बोलता हूँ, बोलिए ना आप। मैं बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैं आपको बोला ही नहीं। सुनिए ना,
सुनिए तो I called you because I called you as anti-corruption crusader. करेक्ट। अब मैं बोलूँ ना, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो गलत हुआ है और बहुत कुछ ऐसा हुआ ये बहुत अच्छा हुआ है। अगर उसको बैलेंस शीट बनाते हैं तो मैं बोलता हूँ अच्छा फार आउटस्ट्रिप्स बुरा। तो मुझे दोनों दिखता है, मुझे बुरा गलत भी दिखता है और मुझे अच्छा भी दिखता है, लेकिन मेरी एक सेंस है जो समझता है कि कितना इतना बड़े 140 करोड़ लोगों के देश में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, और मैं बोलता हूँ कि जो सही हो रहा है ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ। आप अगर प्रधानमंत्री मोदी होते तो आप ब्रिजभूषण सिंह को क्या करते? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। What law will take its own course? When that happens to opposition party, they are not doing anything. सॉरी, If you are talking that law will take its own course, why did they put Kejriwal behind the bar? I'll tell you now. 2022 case. 2022. Was the government sleeping that time? एक मिनट, Please tell me the truth. केजरीवाल now. का केस सुनने का तो पूरा सुनने की हिम्मत रखो। हाँ, because you worked with Kejriwal. हाँ, मैं डर गए थे पूरा. He used to stay in my house in Enforcement director. Mumbai. I used to stay with him. We I were know he close slept. friend. मुझे पता है when he used to come to Bombay, he was sleeping at your place. That time you were with Aam Aadmi Party. I don't support Kejriwal also, but उनको अंदर क्यों करना है? ये सुनिए ना। 2022 केस को क्यों ऊपर उठाना है? Let him defeat politically. सुनेंगे? हाँ, मैं सुनूंगा. इस देश के अंदर कुछ लॉ है, कोई सिस्टम है कि कोई भ्रष्टाचार करे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर उसको पकड़ सकता है, बरोबर है? लिकर केस में जो किया है कोई भी आम आदमी पार्टी का भी नहीं बोलता है कि इसमें करप्शन नहीं हुआ है। उन्होंने जो पॉलिसी आई तुरंत पॉलिसी रिटर्न ले ली जैसे पब्लिक डोमेन में तो आया। सबको ड्रैकोनियन लॉ डाल देंगे. एक मिनट सुनना ही है ना, सुनना भी पड़ेगा। हाँ, सुनना क्योंकि आपने पड़ेगा. क्वेश्चन पूछा है तो क्लियर कट मनी ट्रेल है, क्लियर कट अप्रूवल ने डिटेल दे दिया है। उसने जो जो पैसे का बड़ा अमाउंट नहीं है, 150-200 करोड़ का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट तो वो जल बोर्ड के केस में आएगा, लेकिन 100 करोड़ भी चोरी किया तो चोरी है। उसका प्रूफ कहाँ है? खूब प्रूफ है आपको। हाई कोर्ट No, you tell me the answer. No, you have to listen to me because you asked me a question. When High Court, they approached the High Court for his bail, High Court ने फाइल्स मंगाई, High Court ने सारी फाइल देखने के बाद बोला इसको अंदर डालो। और आप अगर बोलते हो कि इलेक्शन के टाइम के उसको अंदर क्यों किया, yes. तो मैं उसका जवाब देता हूं। ईडी ने नोटिस दिया, ईडी ने नोटिस दिया, ईडी ने नोटिस दिया, ईडी ने नोटिस दिया, और 10th नोटिस जब आई तब इलेक्शन का टाइम आया था। अगर वो पहली नोटिस में जाके जवाब देते तो इलेक्शन के नजदीक का कोई मुद्दा ही नहीं होता। ही वॉज द वन हु डिलेड। तो आप ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली favored Arvind Kejriwal. Supreme Court did not take cognizance of what ED said, what government said. They put lots of pressure on them, and despite all these things, in one word, Supreme Court told, "We are not listening to you." 21 days bailout क्या to Kejriwal. उसको माफ कर दिया, उसको इनोसेंट किया, नहीं, वो तो उसको proof इलेक्शन होगा. के लिए पैरोल दिया। पेरोल नहीं है, इंटरियम बेल है ये. अरे इसको पैरोल बोलते हैं कि 20 दिन के लिए छोड़ना। तो राम रहीम को जो पेरोल देते हैं वो क्यों देते हो? राम रहीम मनीष को सिसोदिया की वाइफ बीमार हो गई तो उसको 2 दिन का पैरोल दिया। पैरोल तो कोर्ट देता है। हाँ, तो हरियाणा का राम रहीम को क्यों पेरोल दे रहे हैं? इलेक्शन है इसके लिए. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको दिया, कल एक फार्मर बोलेगा मेरा हार्वेस्ट आ गया मुझे पैरोल दो, कल दूध के अभी देखिए वो पंजाब का जो गैंगस्टर है वो भी चुनाव खड़ा रहे, उसको भी छोड़ना पड़ा। आई थिंक इट्स सेटिंग अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। फिर तो ये कोई भी जेल में जाके बोलेगा मेरा कोर्ट, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। आई थिंक इट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट, बट इट्स अ सुप्रीम कोर्ट। आई हैव नो पावर टू क्रिटिसाइज इट। So democracy is alive in India. Absolutely. Give me 3 most important example. 3 most example. You tell me Election Commission of India. You tell me law enforcement agencies, and you tell me that mercilessly suppressing the voice of. देखिए अगर मुझे मोदी जी के 2 क्रिटिसिज्म करने होते, हाँ, बोलिए कौन से? बिकॉज आई लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली। वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत बढ़ गया, बेटर हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेटर हो गया है, इकोनॉमी बहुत बेटर हो गया है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैंटास्टिक हुआ, कभी नहीं हुआ वैसा। लेकिन अगर 2 चीज़ मुझे करनी है तो एक तो मुझे लग रहा है कि जो सोसाइटी की फैब्रिक है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, और दूसरा अगर आप कहें कि इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन
कोई मुझे प्राइम मिनिस्टर दिखा दो नेहरू से लेके जिसने इंस्टीट्यूशन को मिसयूज नहीं किया। आई एग्री विथ यू, यस। लेकिन मोदी ज्यादा एफिशिएंट है तो ज्यादा मिसयूज कर रहा है। सबने किया है, कौन नहीं करेगा? इंदिरा गांधी जितना किसने किया तो किसी ने नहीं किया होगा। बट शी सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, या। तो ही विल आल्सो सफर इफ ही हैज डन रॉन्ग। आप क्यों इतना टेंशन लेते व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मुझे कुछ टेंशन नहीं है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? डू यू थिंक दैट मोदी विल रोम होम विथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी? देखिए ऐसी you're not politically inclined to anyone, but as a former member of a big political party, what is your opinion? देखिए ऐसी, बिकॉज क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसी 100 सीट ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट फाइट है। नहीं सुनिए ना, 100 सीट ऐसी है जहाँ पे बीजेपी को 5.5% से भी ज़्यादा वोट नहीं मिले थे कभी। तो इसमें तो 3 गुना भी वोट बढ़ जाएंगे तो भी उनको सीट नहीं मिलने वाली है। 100 हो सकता है उसमें 2-5 तमिलनाडु आंध्र उसमें जो सोचा था वो हो सके। 200 सीट ऐसी थी जहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी, वहाँ पे लास्ट टाइम बीजेपी को 184 सीट्स मिली थी। और 243 सीट्स ऐसी है जहाँ पे बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टी है, वहाँ पे लास्ट टाइम 120-130 मिली थी। मुझे लगता है कि इस बार 330 to 340 के आसपास बीजेपी को मिलने वाली है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे और एक बात कहनी है। हमारा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसा है कि अगर 44% किसको मिला, 41% दूसरे को मिला, तो 10-1 सीट का डिफरेंस होगा। लेकिन वो 44 अगर 47 हो गया ना तो स्वीप हो जाएगा। तो पॉसिबल ये भी है कि अगर मोदी जी को ज़्यादा सीट्स मिली, ज़्यादा परसेंटेज वोट मिला, तो स्वीप भी हो सकता है और 370 सीट्स तक भी जा सकता है। आप पिछले बार मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, वो टाइम पे बता रहे थे कि इंडिया में दो भारत है। एक भारत जो गांव में रहता है, जहाँ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई मंत्री नहीं जाता है, कोई एमएलए नहीं जाता है। बिकॉज ऑफ योर इंटरवेंशन दिस पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। सो लेट अस एक्सेप्ट पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग एनीथिंग। They are only there to only ask for votes. And whether the politicians are from BJP and Congress doesn't make any difference. And even I will go to the extent of telling you that opposition parties are also responsible for giving slogans that democracy is dead in India. But my fundamental question is, why Modi is allowing these people, why Modi is lying before the nation that धर्म के आधार पर ये हिंदू मुस्लिम 20% मुस्लिम्स Hindu people are, they are not growing in numbers. Muslim population are on the rise. क्या बोलते हैं इसके ऊपर? आप कुछ बोलना है आपके पास? हाँ, मेरे पास बोलिए ना। फॉर्मर पॉलिटिशियन हूँ मैं, तो बोलता ही रहूँगा। बोलिए। तो ये समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बात नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम के बारे में। सुनिए ना, तो मुस्लिम का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए के जैसे हम लोग हिंदूज वहाँ खत्म हो रहे हैं, वैसा यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो यू सपोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ, RSS इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो रहा है, तो क्या हिंदू को मिल रहा है कि सबको मिल रहा है? मुस्लिम्स को भी मिल रहा है। ट्रिपल तलाक हुआ, बहुत सारे। मुस्लिम एज अ समाज आर रेजिस्टिंग चेंज। देयर इज अ नीड फॉर मुस्लिम टू चेंज। यू लुक एट साउदी इज चेंजिंग लाइक नेवर बिफोर। लेकिन यहाँ पे वो जो देवबंदी ये वो करके मुस्लिम्स की लीडरशिप में कहीं भी मॉडरेशन नहीं है। जो एक्सट्रीम होता है वो मुस्लिम लीडर बनता है, मॉडरेट मुस्लिम लीडर बन नहीं रहा है। और इस देश के अंदर में ये मैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मुझे ये दिखता है कि जो मुस्लिम से मैं बात करता हूँ ना, तो उसको सिर्फ मुस्लिम के प्रॉब्लम दिखते हैं। तुम्हारी SC ST बात करते हैं ना, तो उनको SC ST और दलित के प्रॉब्लम दिखते हैं, देश का प्रॉब्लम नहीं दिखता है। तो वो अपने छोटे से गेटो में, छोटी सी सोच में अटके, उनको वहां से निकालना पड़ेगा। समझ गया मैंने। लेट अस चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, मेक इंडिया एज ए हिंदू राष्ट्र। क्या प्रॉब्लम है इसमें? पर कौन बोल रही है? आप क्यों बोल रहे हो? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मोदी भी नहीं बोल रहा है, RSS वाला भी अभी नहीं बोल रहा है। नहीं, मोहन भागवत बोला 2 दिन तो पहले बोला, अभी कोई नहीं बोलता है। वो बोलते हैं अभी। अरे वो तो ये बोल रहे हैं, राम माधव बोल रहा है, प्रहलाद जोशी बोल रहा है। वो तो सब पुरानी। अभी देखिए, आप देखिए, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो यू कैन टॉक अबाउट इट, बट दिस डिस्पेंसेशन, प्राउड हिंदू डिस्पेंसेशन, दिस बीजेपी, दिस गवर्नमेंट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। मोदी जी ने तो ये बोल दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं सौगंध खाता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन डे शुरू किया। और लेकिन इतना दुष्प्रचार हो रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं, मुस्लिम के विरोधी है।
तो वो एक इलेक्शन के टाइम पे ऐसे एलिगेशन होते हैं, ऐसा दुष्प्रचार होता है, पर मुझे ये दिख रहा है कि मेरा देश इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वर्ल्ड का नंबर 3 कंट्री हो गया है, ये शायद फर्स्ट नंबर का हो जाए। ऐसे में आप बैठ के खाली गाली देने से कुछ होगा नहीं। मुझे भी याद है, मैं जब भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में था ना, तो मुझे अभी भी याद आ रहा है मैं कितना बेवकूफ़ी करता था। वो एंटीला के सामने जाके मुकेश अंबानी मुर्दाबाद, उसको बेचारे को पता भी नहीं कि मैं कोई हूँ क्या, कि जिंदा हूँ, और पूरा लाइफ मैंने स्पेंड कर दिया प्रोटेस्ट करने को। अभी मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा सोचिए, ये सब प्रोटेस्ट नेगेटिविटी को छोड़ के सपोर्ट कीजिए ना इस देश को आगे बढ़ने के लिए। मैं सपोर्ट और कर रहा हूं कहीं ना भी मैं। कुछ गलती हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। इसके लिए कॉन्क्लेव का नाम इंडिया 2047 है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बट आई लगा हैव टू बी मुझे। बैलेंस्ड आल्सो। जी मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पूछिए ना। नरेंद्र मोदी ने बताया था देश में कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आ जाएगा। अभी भी लोगों के पास मेडिसिन नहीं पहुंच रहा है, डॉक्टर नहीं है रूरल में। आप जिधर से आते हैं ना, आप जहाँ पे अभी मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ। हाँ, अभी आप जहाँ पे काम करते हैं बीड में, मराठवाड़ा, जो कि वन ऑफ द पावरफुल प्लेस है। पावरफुल नहीं है, वर्स्ट प्लेस है। हाँ, हाँ, ठीक है। सबसे गरीबी है। Powerful place in the sense that you have done lots of plantation, you have changed the lives of the farmers, you have made the standard of living much better. Why Modi can't do it? Why you have to enter into the picture? See. Let us remove all these politicians. मैं अभी 4100 गांव में काम करता हूँ। आपके लिए रहने के लिए घर नहीं है, सुनिए। मोदी के पास इतना बड़ा बंगलो है। ये क्या है, कोई डिस्कशन नहीं है। अभी मैं 4100 गांव में काम करता हूँ, 4.5 करोड़ मैंने फल के पेड़ लगाए। और अभी टाटा से मैंने रिपोर्ट मांगा था कि हमारा थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि जो पहले 38,000 रुपीज़ पर एकड़ कमा रहे थे किसान, हमारे आने के बाद 3,93,000 कमा रहे, 10 टाइम्स जंप इन अबाउट अ ईयर्स टाइम। ऐसा कहीं इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। दिस इज इन द एरिया वेयर हाईएस्ट फार्मर सुसाइड्स आर टेकिंग प्लेस, जिधर बच्चों ने कभी दूध नहीं चखा है, 3,500 रुपया इनकम है उनकी, 8 साल में 6 ड्रॉट पड़े हैं। इसको हम जाके बदल रहे हैं। लेकिन बदलते बदलते हमको ये दिखने लगा है कि पहली बार ये गवर्नमेंट थोड़ा इफेक्टिव हो गया है। उन्होंने जो 2 वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ऐसे नो गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड हैज डन एनीथिंग लाइक दिस। एक तो यूपीआई और एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम, जो राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपये में से 15 पैसा नीचे आता है, आज 1 रुपये में से पूरा रुपया आ रहा है। एमएसपी क्या है? एमएसपी, फार्मर्स एमएसपी। व्हाई फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड एक्चुअली? व्हाई यू आर नॉट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द फार्मर्स एक्चुअली? आप देखिए फार्मर की सिचुएशन जो पहले थी और आज देखिए, सही में कुछ क्या चेंज हुआ आप है? बोलते हो, मैं जमीन के ऊपर देख रहा हूं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम से एवरी रुपी इज कमिंग इन द फार्मर्स पॉकेट। नहीं आ रहे हो, सब जगह नहीं पहुंच रहा है। कैसे नहीं? आप कोई तो रिपोर्ट होगा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा। मेरे पास ऑक्सफार्म का रिपोर्ट है। मुझे आई वुड लव टू सी इट, बिकॉज ओके, मैं भेज दूंगा। मैं पूरे वर्ल्ड, पूरी इंडिया में कोई इतने क्रिटिकल लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, ये सब बैठ के सरकार की खराबी करने में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम में 1 पैसे का भी घोटाला हो रहा है या डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे, ये उनके मुंह से भी नहीं सुना मैंने। तो आप मुझे ये बता रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन बता रहे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड, there is something wrong in India, that Muslims are being persecuted in India, there are grave concerns that Modi might get into something drastic, तो आपको कुछ नहीं लगता ये सब तो अपोजिशन का एक चाल है? ये सब वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक यूएस में। हाँ। डेमोक्रेटिक पार्टी सारे लेफ्टिस्ट लिबरल से भरा पड़ा है, वो यहाँ के लेफ्टिस्ट लिबरल से वो जुड़े हुए हैं, तो इंडिया को बदनाम करना। हाँ। न्यूज़पेपर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, न्यूज़वीक देखिए, इनका काम ही है इंडिया को बदनाम करना। लेकिन आप तो इंडियन है, आपको तो रियलिटी पता है ना, उसकी बात सुन मैं वही बोल रहा हूँ। मैं सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बात किया, वो बोल रहे कि कोई आया नहीं, चाइना का उधर अंदर घुस के हमारा ले गया वहां पे। राइट और नो? सुब्रमण्यम स्वामी को कोई बिलीव करेगा तो फिर तो लाला लैंड में जी रहा है। रियलिटी से बात करते हैं, रियलिटी से बात कर रहा हूं मैं। There are army measures, there are people in that place who are openly saying that they have taken away our lands, they have built up their infrastructure. I have no authentic documentation like this. But have you? And I don't listen to conspiracy theories. Authentic document दीजिए, I will be happy to criticize it. But there should be authentic document. Anecdotal evidence नहीं चलेगा कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वो नहीं है। इतना बड़ा सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इस देश की सोवरेनिटी को
चाइना चैलेंज कर रहा है, अपना लैंड लेके गया है, तो इसका तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। Former SEBI chairman Raghuram Rajan is telling that there is inflation is at a high point, unemployment is at a high point. इकोनॉमिस्ट है क्या, पॉलिटिशियन है, ये भी सोचने की जरूरत है। वो Dad, you don't tell me that राहुल गांधी की यात्रा में गए थे, वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं। But he's an economist. इकोनॉमिस्ट तो कितने, देयर में बी एटलीस्ट 10 लाख इकोनॉमिस्ट, कोई क्या बोल देता है, कोई क्या। एवरीथिंग शुड बी सीन इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, रियलिटी चेक करने की जरूरत है। इसने ये बोल दिया मोदी इतने कपड़े पहनता है, मोदी फोटोग्राफर के सामने खड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है कि 25 करोड़ लोग गरीबी के बाहर निकले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो भी सभा में जाते हैं वहां पे बताते हैं कि हमारा 200 सीट आ गया, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये कोई प्रधानमंत्री का भाषा है? ये तो क्लेम्स काउंटर क्लेम्स इलेक्शन में होते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे जब के समय में, मुझे पता है, वो फेक इलेक्शन ओपिनियन पोल्स बनाते थे। 44% इसको, वो उसने बनाया था 46% इन गोवा आएगा, 1.6%। तो ये सब इलेक्शन के टाइम पे ये सब फेक नैरेटिव्स चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, जी, जिसका लिविंग एग्जाम्पल अभी आज भी जिंदा है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बता रहा हूँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी was declared by Rajnath Singh in the parliamentary board meeting that is the prime ministerial candidate, Lal Krishna Advani opposed actually. Are you aware? He opposed actually. And he told that he should not be given a chance. But Modi came, Modi suppressed all the opposition. Modi told that I am the one who will actually do everything. He's mercilessly suppressed the voice of senior leaders like Sushma Swaraj, like Lal Krishna Advani, like Murli Manohar Joshi, and sent them to Margdarshan. Listen to me now, the next question. Please. Next year, Modi will not be the prime minister because he will turn 75. मोदी का खुद ही उधर लिखा है वहां पे, कोई 75 साल का बन जाता है तो उसको रहने का अधिकार नहीं है। गलत हूं मैं, राइट हूं? मोदी ने कोई इलेक्शन रैली में बोला था, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में है क्या? नहीं, अभी का बीजेपी नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 75 पे रिटायर होना पड़ेगा। तो मुरली मनोहर जोशी को क्यों निकाल दिया वहां पे? क्योंकि मोदी जब पावर में आया, he had a set of ideas he wants to take the country to. And he thought Murli Manohar Joshi won't fit in. He said कि उनके एक अपने विचार है, उनको मार्गदर्शन मंडल में रखा। मोदी उनको काफी बार विजिट भी करते हैं, अभी अडवाणी जी को भी जाके मिला। ठीक है, ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब टेलीविजन शो के लिए हुआ है। आप देखिए, देश का सामने देखिए, देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मोदी ने इसको क्या बोला, उसने ये क्या बोला, वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे फोटो खिंचवाता है, किससे हाथ मिलवाए, ये सब माइनर चीज है। मेजर क्या है? 25 करोड़ लोग गरीबी के बाहर निकले। मेजर क्या है? इंडिया का इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड का इकोनॉमी फेल हो रहा है, वहां पे इंडिया का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेरिफिक हो रहा है। ये सब चीज क्रिटिकल है इस देश के लिए। मेरे लिए वो क्रिटिकल है। किसने लाल कृष्ण आडवाणी को क्या बोला, मुरली मनोहर का, अनइम्पोर्टेंट टू मी। Okay, that was a very candid discussion actually. In fact, we have taken a lot of time now. Mayank, thank you for answering all the questions. Sorry if I was a little rough. At the end of the conclusion, let me tell you one thing. We discussed about suffocation of Indian democracy because people were raising about it. And the questions that I posed to Mayank Gandhi, not because he is from any ruling dispensation, but he had his own opinion, and I agreed with most of the answers. Frankly, if you ask me, democracy is not dead in India. There are people in opposition who are labeling that democracy is dead. What Prime Minister Modi has done for India is great actually, which no Prime Minister has done it. But there are certain allegations which is coming out. For those delegations to clear it out, it becomes a responsibility for me to ask those questions. And it is very important for me to raise those doubts and put it before you that these are the people talking about it. And I know Prime Minister Modi, who has initiated a series of reforms that is giving the rich dividends to the people, and India is going to be a great nation. I had to ask this question because these are the questions from the opposition sector, and I spoke out in my heart. You also spoke out from that. Let's give him a huge round of applause for Mayank Gandhi for this candid discussion. Thank you for taking all the questions. That was a riveting discussion.
Thank you, Mr. Mayank Gandhi, again for entertaining us with your fierce discussion, and Dr. Satya Brahma, as always, asking the poignant questions that we are scared to answer I hope you and didn't think about. Perfect match. And that, वहीं से हम शुरू करते हैं. Like in a minute, we are going to go for a lunch break. But I request Dr. Satya Brahma to present the memento to Mr. Mayank Gandhi. This is for you as a token of appreciation. I wanted to tell you one thing. In 2013, 2012 or 13, I called Mayank Gandhi because I was supporting India against corruption also, because I wanted to bring changes in the country. I had given one gift, this gift hamper, which is just token of appreciation, which is nothing else. He told, I can't accept it because it is something coming from me. So that is an honesty from Mayank Gandhi. So let's give him, round of applause for him. Then he realized that I'm an honest journalist. Then he took it out. अंदर डाल दो, हाँ इसको पकड़ो. पहले कर दो. ये कर दो, हो जाएगा. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are going for lunch break, and when we come back, we will be presenting the much awaited 13th Annual India Leadership Conclave Power Brand Awards 2024. So let's have a good lunch now and return by in an hour. Bon appetit.